السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ KCR کا فارم ہاؤس سے باہر نکلنا مشکل، جبلی ہلز ضمنی انتخاب میں BJP کی ضمانت ضبط ہوگی، وزیر اعلیٰ کا دعویٰ۔ جوبلی ہلز میں انتخابی مہم کا اختتام، کانگریس اور BRS میں راست مقابلہ۔ BRS کی کامیابی، کانگریس کی وعدہ خلافیوں کا ہوگا جواب۔ KTR اور ہریش راؤ کی لمحے آخر میں انتخابی مہم۔ اور امین پور میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا مبینہ قتل، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔
वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स असेंबली हलके से कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, बीआरएस को शिकस्त होगी और बीजेपी की जमानत जब्त होगी। सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जमानत बचा लेती है तो ये ऐसा समझा जाएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को शिकस्त दी गई। बीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने इस पार्टी को अपोजिशन का मौक़िफ़ दिया, लेकिन ये अपोजिशन का रोल भी अदा करने से कासिर रही। बीआरएस बीजेपी के अंदरूनी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि रुकन कौंसिल के कविता ने ही खुद इसका इंकशाफ किया कि बीआरएस को बीजेपी में जम करने की कोशिश की गई। बीआरएस के बानी और सदर के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इख्तिदार से महरूमी के सदमे से बाहर नहीं आए। फार्म हाउस से निकलना उनके लिए मुश्किल है, हत्ता कि अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया। अवाम के दरमियान जाकर अवाम के मसाइल की समाअत करनी पड़ती है। फार्म हाउस में आराम करके अवाम के मसाइल का राग नहीं अलाप सकते। बीजेपी पर बीआरएस की बिलवास्ता मदद का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कायद व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और उनसे सवाल किया कि बीजेपी की मुहिम के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे अफराद को क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने अपने मुतवातिर दौरे दिल्ली की मुदाफ़ियत भी की और रिमार्क किया कि उन्होंने 80,000 किताबें तो नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ज़िंदगी के नशेब व फराज को ज़रूर पढ़ा है। ग्रेवाज के लिए हम जगह दिखाया, जगह में कुछ बीजेपी वाले कुछ लिटिगेशन लगाए, वो समस्या को हल्का करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर बार मुसलमान लोग, खासकर माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो और कोई भी हो, माइनॉरिटीज हमारे साथ ही, इसीलिए हम सरकार बनाए। ये सरकार में माइनॉरिटी मेजॉरिटी अलग अलग नहीं है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ये दोनों दो आंखें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो हर बार जैसा जैसा हमें मदद दिए वो हिसाब से आज भी हमको मदद मिलने वाले है। और खासकर इस चुनाव में, जुबली बाई इलेक्शन चुनाव में सीपीआई, सीपीएम, कोदंडराम जी और एमआईएम सब लोग हमको मदद दिए। खाली बीजेपी बीआरएस एक तरफ है, बाकी सब सारे दुनिया एक तरफ है। आपको तो कहावत पता है ना, साले बावने एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। तो साले बाव में एक तरफ है, सारी दुनिया दूसरे तरफ है। इस चुनाव में माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी आएंगे, इस चुनाव में हम जीतेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स के इंतखाब में बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया साजबाज का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बीजेपी इस हल्के से कांग्रेस को शिकस्त देने बीआरएस की मदद कर रही है। यूसुफगुड़ा में पार्टी उम्मीदवार नवीन यादव के लिए मुहिम चलाते हुए प्रदेश कांग्रेस के सदर ने कहा कि ये दोनों जमातें पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के खिलाफ हैं। इसके लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए मुहिम चलाई। यूसुफगुड़ा डिवीज़न के तहत कृष्णा नगर में उन्होंने राय दहिंदों से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि 10 साल से राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। कांग्रेस हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी किए। 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी, 500 रुपये में पकवान गैस, बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलतें फराहम की गईं। अभी कई काम बाकी हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके से कांग्रेस को कामयाब किया जाए ताकि यहाँ भी मुख्तलिफ तरक्याती और फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए जा सकें। जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम से कबल बीआरएस कायद केटी रामाराव ने यूसुफगुड़ा में मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस की कामयाबी कांग्रेस हुकूमत की वादा खिलाफियों का अवामी जवाब होगा।
उन्होंने केसीआर के दौरे हुकूमत में किए गए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्राम्स का जिक्र किया और राय दहिंदों से बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। बीआरएस कायद व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को अवाम को गुमराह करने वाला शख्स करार दिया। उन्होंने मीट द प्रेस के दौरान वजीर आला की गुफ्तगू, केसीआर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर सख्त एतराज किया। उन्होंने कहा कि 6 गारंटियों के नाम पर अवाम के साथ वजीर आला ने धोखा किया है। నేను ఢిల్లీకి పోతే నన్ను దొంగలెక్క చూస్తుండ్రు, చెప్పులు ఎత్తుకపోతాడేమో అని అపాయింట్మెంట్లు ఇస్తలేరు, గిచ్చిలర మాటలు మాట్లాడతాడు. నేను అడుగుతున్నా, చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులను చూసినాం 25 ఏళ్లలో. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినాం, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని చూసినాం, రోషయ్య గారిని చూసినాం, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని చూసినాం, తర్వాత మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని చూసినాం. ఎన్నడన్నా ఒక్క ముఖ్యమంత్రి ఇంత చిల్లరగా ఇంత దివాలాకోరు మాటలు మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి ఇంకెవరు ఉన్నారా? మీరు ఏమయ్యన్నా 2000 పెన్షన్లు అంటివి 4000 చేస్తా అంటివి, 2000 పెన్షన్ను ఎప్పుడు ఇస్తావంటే నీ లాగుల తొండలిడిచి పెడతా అంటాడు. ఏమయ్యన్నా మరి 6000 పెన్షన్ అంటివి కదా ఎక్కడ బాయ్ అంటే నీ గుడ్లు వీకి గోటీలు ఆడతా అంటాడు. ఏమయ్యన్నా తులం బంగారం ఇస్తా అంటివి ఏం సంగతి అంటే నీ పేగులు వీకి మెడలేసుకుంటా అంటాడు. పిల్లగాన్లు పోయి ఉద్యోగాలు అడిగితే వాళ్ళను పోలీసులతో కొట్టిస్తాడు. 3 ఏళ్లుంటా ఇంకా 3 ఏళ్లున్నది ప్రభుత్వం అంటున్నాడు కాంగ్రెస్ ఆయన. నేను గుర్తు చేస్తున్నా, గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలకే ఏమిస్తలేడు. 64 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినారు 2023లో. ఇలా వాళ్ళే చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, మాకే దిక్కులేదు, ఇంకొకరిని గెలిపిస్తే ఏం చేస్తాడు, ఏమి చేయలేడు అని చెప్తున్నారు. మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే చెప్తున్నాడు, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి, నన్ను గెలిపించిర్రు మీరు, నేను పెళ్లిళ్ళు పేరెంటాలు తిరుగుతున్నా, ఇంకేమిటికి పైసలు లేవు, రేవంత్ రెడ్డి పైసలు ఇస్తలేడు అని మహబూబ్ నగర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చెప్తున్నాడు. बीआरएस कायद और साबिक वजीर टी हरीश राव ने कहा कि केसीआर के 10 साला दौर इख्तिदार में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ मुख्तलिफ शोबों में नुमायां तरक्की की गई। जुबली हिल्स असम्बली ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन इरागड्डा डिवीज़न के मोती नगर वासवी बिरदावन अपार्टमेंट में शहरियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने बरक़ी, पानी की सरबराही, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, कालेश्वरम और दीगर प्रोग्रामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में धान की रिकॉर्ड पैदावार हुई जो 68 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख टन तक पहुंच गई। उन्होंने कांग्रेस दौरे हुकूमत में हाइड्रा का हवाला देते हुए कहा कि केसीआर ने गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए और कांग्रेस हाइड्रा के जरिए गरीबों को बेघर कर रही है। उन्होंने बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। తెలంగాణ వచ్చిన రోజు మొత్తం మన స్టేట్లో 2850 ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఉండేది. 2850 ఎంబీబీఎస్ సీట్స్. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో వి మేడ్ ఇట్ 10,000 ఎంబీబీఎస్ సీట్స్. తెలంగాణ ఏర్పడ్డ రోజు దెర్ వర్ ఓన్లీ 5 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. మా 10 ఏళ్లలో 35 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ చేశాం. అంటే పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ లో 1947 to 2014 తెలంగాణలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలు 5 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు. 10 years లో మేము చేసింది 35 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు చేశాం. అంటే ద కమిట్మెంట్ అంటే హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ కావాలి, పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, అవకాశాలు. మన పిల్లలు ఎక్కడికి పోయినరు మెడికల్ సీట్ రాక? ఫిలిప్పైన్, చైనా, రష్యా, ఉక్రెయిన్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర పోయి చదివిన పిల్లలు సీట్లు రాక. ఆ విషయాన్ని మేము అర్థం చేసుకున్నాం. మేము ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ను 2850 నుంచి 10,000 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు పెంచాం. వి మేడ్ తెలంగాణ మెడికల్ హబ్. బాగా మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తే ఈరోజు మీకు మొత్తం నార్త్ ఇండియా నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ కోసం ప్రజలు హైదరాబాద్కు వస్తున్నారు. గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి, ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు हैदराबाद। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर बंडी संजय ने दावा किया है कि अगर बीजेपी उम्मीदवार को जुबली हिल्स हल्के में कामयाबी हासिल होती है तो हम जुबली हिल्स का नाम बदलकर सीताराम नगर रखेंगे। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए बंडी संजय ने
वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी मिली तो जुबली हिल्स हलके का नाम बदलकर सीताराम नगर रखा जाएगा और रहमत नगर का नाम भी तब्दील करके मीनाक्षीपुरम रखा जाएगा। बंडी संजय के इस मुतनाज़ा बयान को मजहबी मुनाफरत भड़काने की कोशिश करार दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इश्तियाल दिलाने वाले बयानात के जरिए अवाम को राग़िब करने की कोशिश की और कहा कि बीजेपी 80% हिंदू तबके के वोट बैंक पर इन्हिसार करती है। उन्होंने समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान खलीज पैदा करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसिल मिर्जार रहमत बेग ने जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में मुहिम चलाई। उन्होंने एरागड्डा, रहमत नगर और मुत्तसिल इलाकों में रोड शो किए, अवाम के मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात की और कहा कि हल्के के अवामी मसाइल के हल के लिए मजलिस यहाँ कांग्रेस की तायीद कर रही है। उन्होंने मुख्तलिफ मोहल्लाजात में घर घर पहुँचकर अवाम से रब्ता किया। उनके हमराह मजलिस के कई मुकामी कायदीन और दीगर शख्सियतें भी शरीक थीं। रुकन कौंसिल की अवाम ने गुलपोशी की और नवीन यादव को कामयाब बनाने का तयक्कुन दिलाया। बल्लागुड़ा के गौसनगर इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरीजों से मुलाकात करके उन्हें तयक्कुन दिया कि असरा और ओवैसी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ने पर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में मजलिस की इस सहूलत से इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अजीज़ बाग वाक़े नूर खां बाज़ार में मुफ्त आई कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खानगी दवाखाने के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। ऐनकें भी मुफ्त फराहम की गईं। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि हल्का असम्बली चार मीनार में सरकारी और खानगी डॉक्टर्स के ताउन से अमराज़ चश्म के मज़ीद कैंप कायम किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाते हैं जिससे अवाम कसीर तादाद में इस्तेफादा करते हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया अलमदार वाला जाही और मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से दर्ज हरारत में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। रात के वक्त ठंडी हवाओं की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है जिसके बाइस कई मुकामात पर कम अज़ कम दर्ज हरारत मामूल से नीचे गिर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद ज़िले के बेला में सबसे कम दर्ज हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रंगारेड्डी ज़िले के शाबाद में भी यही दर्ज हरारत रहा। संगारेड्डी के ज़हीराबाद में 14.8 डिग्री, शंकरपल्ली में 14.9 डिग्री, मोइनाबाद में 15 डिग्री, आदिलाबाद के भीमपुर में 15 डिग्री और संगारेड्डी के जनारम में 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत नोट किया गया, जबकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 17 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ है। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के अलकाटोर्ती गांव में नामालूम अफराद ने रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क के किनारे खेतों में छोड़ दी। सुबह जब लोग सड़क पर निकले तो हर तरफ मुर्गियों का शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग मुर्गियों को पकड़ने के लिए जमा हो गए। किसी का कहना था कि उनकी किस्मत है कि उन्हें ये मुर्गियां मिली हैं, जबकि कुछ ने शुबहात का इजहार भी किया। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां आखिर किसने और क्यों छोड़ी हैं। पंचायत सेक्रेटरी श्रीनिवास ने एहतियात बरतते हुए चंद मुर्गियां वेटनरी डॉक्टर दीपिका के हवाले की हैं। डॉक्टर ने अवाम से अपील की है कि तिब्बी जांच रिपोर्ट आने तक इन मुर्गियों को खाने से परहेज
किया जाए। मदीना कॉम्प्लेक्स सईदाबाद में एक फ्लैट में आग लगने से घर का साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की दोपहर के औकात में अचानक फ्लैट में आग लग गई। सईदाबाद पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के करीब शराब की दुकानों की वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि शराब की दुकान के लोग वहीं शराब नौशी करके हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शराबी वहां सुबह 10 बजे से रात देर गए तक शराब पीकर आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। इस वाक़े में बाज़ अफराद लड़ाई झगड़े में जख्मी भी हुए हैं। एक वाक़े में नशे में धुत जख्मी शख्स शकील अहमद को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि शराब की दुकान की वजह से ख़वातीन को बाजार जाने मुश्किल हो रही है, मगर वो घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शराब की दुकानों को वहां से बर्खास्त किया जाए। जिले संगारेड्डी के अमीनपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेंकट ब्रह्मी नामी शख्स अपनी बीवी कृष्णावेनी पर शक किया करता था और इसी वजह से उनके दरमियान झगड़े हुआ करते थे। इतवार को भी दोनों के दरमियान बहस व तकरार हुई। वेंकट ब्रह्मन ने कृष्णावेनी पर मुबैना तौर पर बैट से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बरसरे मौका हलाक हो गई। वेंकट ब्रह्मी डीसीसीबी कोहीर में असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से काम करता है। अमीनपुर पुलिस ने मकामे वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। केसीआर का फार्म हाउस से बाहर निकलना मुश्किल, जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की जमानत जब्त होगी, वजीर आला का दावा। जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम, कांग्रेस और बीआरएस में रास्त मुकाबला। बीआरएस की कामयाबी, कांग्रेस की वादा खिलाफियों का होगा जवाब, केटीआर और हरीश राव की लम्हे आखिर में इंतखाबी मुहिम। और अमीनपुर में शौहर के हाथों बीवी का मुबैना कत्ल, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 टीवी खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 टीवी। खुदा हाफिज़।